يميجت عشق صدر سبان يميجت عشق صدر سبان سپد مہارم سپد. اس مٹی پہ گھر. پاپا صاحب بیٹا گھر زندگی میں ایک ہی بار بنتا ہے. بھروسہ رکھیے گھر مضبوط ہی بنے گا. ایک ہے موقع اس میں سب لگاؤں گا اپنے ارادوں سے مضبوط ایک گھر بناؤں گا. بھجوانا صرف الٹرا ٹیک ہی. الٹرا ٹیک ہی کیوں؟ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ گھر زندگی میں صرف ایک ہی بار بنتا ہے. گھر ایک موقع ایک، اس لیے سیمنٹ بھی دیش کا نمبر 1 الٹرا ٹیک، انڈیاز نمبر 1 سیمنٹ. گولڈی میٹ مٹن مسالے، جو آپ کے ہاتھ کا مٹن کھائے زندگی بھر آپ کا ہو جائے. جہاں جائے رشتہ بنائے گولڈی مسالے. مودی سرکار کی گارنٹی، مہیلاؤں کے لیے دھواں مکت رسوئی. پردھان منتری اجولا یوجنا کے تحت 10 کروڑ گیس کنیکشن. ہمارا سنکلپ وکست بھارت. گولڈی میٹ مٹن مسالے، جو آپ کے ہاتھ کا مٹن کھائے زندگی بھر آپ کا ہو جائے. جہاں جائے رشتہ بنائے گولڈی مسالے. ناظرین آداب، پروگرام قانون اور انصاف کی بات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، جس میں ہمارا تعاون کرتی ہیں جموں کشمیر لیگل سروس اتھارٹیز. ناظرین ہر بار کی طرح ایک نئے مہمان کے ساتھ آئے ہیں اور ایک نئے موضوع کے ساتھ آئے ہیں. آج ہم بات کریں گے ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ کے بارے میں، اور آج ہم بات کریں گے ہماری خواتین کی کہ کیا ان کے رائٹس ہیں پراپرٹیز کو لے کر، اور کیسے وہ پراپرٹی جو ہے وہ حاصل کر سکتی ہیں اگر کہیں پہ کسی کی بھی حق تلفی ہو گئی ہے، اور اس پراپرٹی کا وہ کیسے اپنی بہتری کے لیے صحیح استعمال بھی کر سکتی ہیں. ناظرین ان دونوں موضوعات پہ ہم آج کے پروگرام میں بات کریں گے، اور آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے ان موضوعات پہ بات کرنے کے لیے. جو آج کی ہماری مہمان جج صاحبہ ہے وہ ہے نصرت علی حقاق، سیکریٹری سب جج ڈالسا گاندربل. میم آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے پروگرام میں. جیسے کہ میم ہم نے شروعات میں ہی اپنے ناظرین کو بتایا کہ آج جو ہمارے پروگرام میں موضوع ہیں وہ 2 ہیں. ایک ہم ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ کے بارے میں بات کریں گے، اور دوسرا ہم فیمیلز کی پراپرٹی میں یعنی انہیریٹنس جو ہے فیمیلز کو لے کر اس پہ بات کریں گے. تو میم سب سے پہلے ہم آتے ہیں کہ کیا ہے ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ اور کیا ضرورت پڑی اس ایکٹ کو بنانے کی. The Protection of Women from Domestic Violence Act 2005 جو ہے وہ ایک مؤثر عملہ ہے جو تحفظ دیتا ہے ایک عورت کو، خواتین کو جو گھریلو تشدد کی شکار ہے یا باقی جو مسائل گھروں میں اس کے ریلیٹڈ تشدد کے ریلیٹڈ ہو، چاہے وہ منسلک ہو یا اتفاقی طور پہ اس سے تشدد سے جو بھی ریلیٹڈ ہے اس کو یہ کور کرتا ہے اور یہ تحفظ فراہم کرتا ہے ان خواتین کو جو اس کا وکٹم ہے. جی میم کیا رائٹس ہیں ایک فیمیل کے یعنی ایک وائف کے اس ایکٹ کے تحت؟ دیکھیے اگر وائف کی ہم بات کریں تو ظاہر ہے ایک مرد جب شادی کرتا ہے ایک عورت کو وہ شادی کر کے اپنے گھر میں لے آتا ہے تو وہ جو گھر ہوتا ہے وہ اس کا اپنا آبویسلی نہیں ہوتا ہے، اس کے نام پہ نہیں ہوتا ہے. مگر جو یہ ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ ہے وہ اس کو یہ رائٹ دیتی ہے اس وائف کو کہ وہ اس مکان میں رہ سکتی ہیں
हालांकि उसका कोई उसमें ओनरशिप नहीं है, उसमें कोई उस मकान में उसका कोई हिस्सा नहीं है, उस वक्त उसका कोई राइट नहीं होता है, उसके नाम पे नहीं है मकान, मगर इस डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत इसको ये हक है, कानूनी हक है कि वो उस शेयर्ड हाउस होल्ड में रहे। जी, यानी आपके कहने का यहाँ पे अगर है मतलब ये है कि अगर एक फीमेल की शादी होती है, हर लड़की दुल्हन बनकर अपने शौहर के घर जाती है और वो घर उसी का होता है, लेकिन अगर इनमें कहीं डिस्प्यूट हो गया और हस्बैंड ये प्ली लेता है कि ये जो घर है ये मेरा नहीं है, अब तुम यहाँ से चली जाओ या तुम यहाँ से निकलो या हम यहाँ से निकलेंगे, जो कि अक्सर हम आए दिन कोर्ट्स में देखते हैं कि ये ट्रिक्स रहती हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक फीमेल पे करने के लिए, मदर और बेटे या मदर और फादर इनके बीच, मतलब फैमिली मेंबर्स के बीच, हस्बैंड के पेरेंट्स के बीच, तो ये वो ट्रिक्स यूज करते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि जो डोमेस्टिक वायलेंस है, घरेलू तशद्दुद है, ये सिर्फ इस हद तक नहीं है, इसमें सारा कवर है डोमेस्टिक वायलेंस में, चाहे ये जो तशद्दुद है ये जिस्मानी है, ये जहनी है, ये जज्बाती है, ये जिनसी है, या किसी किस्म की अजियत आप पहुंचा रहे हो विक्टिम को, या उससे रिलेटेड कोई इंसान है उसको अजियत पहुंचा रहे हो, इस हद तक कि अगर आप धमकी भी उसको दे रहे हो कि हम फलानी, उसका बच्चा हो, माँ बाप हो, उसको किसी किस्म की अजियत पहुंचाएंगे, तो ये सारे जुमरे में आ जाते हैं। जी मैम, क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं इस एक्ट के तहत? जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आप किसी को जिस्मानी तौर हैरेस कर रहे हो, किसी को जज्बाती है, जिसको देखिए इमोशनल अब्यूज होता है, इकोनॉमिक अब्यूज है, ये सारे इस जुमरे में डोमेस्टिक वायलेंस। जरूरी नहीं है सिर्फ हाथ उठाया जाए फीमेल, जरूरी नहीं है, क्योंकि इसमें जब जज्बाती आ गया तो इसमें ये भी कवर हो गया। तो इकोनॉमिक है, आप किसी को खाना पीना नहीं दे रहे हो, उसको बेसिक जो मेंटेनेंस जरूरत है उसको नहीं दे रहे हो, वो भी इस जुमरे में आ जाएगा, वो भी हैरेसमेंट है, वो भी एक डोमेस्टिक वायलेंस का हिस्सा है। और कैसे एक फीमेल जो एग्रीव्ड होगी वो कैसे कंप्लेंट कर सकती है और कहाँ कंप्लेंट कर सकती है? बिल्कुल, देखिए जो एक विक्टिम है इस डोमेस्टिक वायलेंस का, घरेलू तशद्दुद का शिकार है, तो उसको इस एक्ट के तहत भी उसको अपनी मर्जी है कहाँ जाए, उसको ऑप्शंस रखे गए हैं, या तो जो प्रोटेक्शन ऑफिसर्स अपॉइंट किए गए होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, प्रोटेक्शन ऑफिसर को वो अप्रोच कर सकती है, वो पुलिस ऑफिसर्स के पास जा सकती हैं, या वो डायरेक्टली मैजिस्ट्रेट के पास आकर अपना जो इस्तिखासा है, अपनी कंप्लेंट वो दर्ज करवा सकती हैं, और वहाँ पर बिल्कुल उसका वो फॉलो अप हो जाएगा और उसका अजाला हो जाएगा। जी मैम, क्या कुछ टाइम लिमिटेशन होती है इन सारी चीज़ों के लिए? जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस केसेस हैं, वैसे ही कोर्ट्स बहुत ज़्यादा बिजी हैं, क्या कुछ टाइम फ्रेम? देखिए मेन जो इसमें मैं आपको बोलूँ, जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की बात करें, जो वो ख्वातीन ऑब्वियसली ऐसा है कि वो शेयर्ड हाउस होल्ड उनके साथ रह रही हूँ, खावंद के साथ जैसे वो रहती है, इसमें जॉइंट फैमिली का हिस्सा अगर वो है, किसी भी जॉइंट फैमिली के मेंबर के खिलाफ जो है, जिसमें बेसिकली वो रिहाइश पजीर हो, उनके साथ डोमेस्टिक रिलेशनशिप में हो, जो ये एक्ट डिफाइन करता है कि किसी भी उस डोमेस्टिक रिलेशनशिप में जब वो रह रही है, शेयर्ड हाउस होल्ड उसके साथ शेयर कर रही है उन घर वालों के साथ या खावंद के साथ, तो ये बेसिक जो ये है, बेसिक इसमें इंग्रेडिएंट जो है ये होना चाहिए कि शेयर्ड हाउस होल्ड में वो रह रही हूँ, डोमेस्टिक रिलेशनशिप शेयर कर रही हूँ। मैम, जैसे कि आप खुद कोर्ट होल्ड करती हैं और ऑनरेबल चेयर पे आप खुद होती हैं, कभी कभी कुछ केसेस ऐसे आते हैं कि एक फीमेल इस एक्ट का गलत इस्तेमाल करती है अपने इन लॉज के खिलाफ, अपने सास ससुर के खिलाफ, या अगर जॉइंट फैमिली है तो जॉइंट फैमिली के खिलाफ। क्या आप खुद को वहाँ कर्टेल करती हैं, या अपने जो वो राइट्स जो इस डोमेस्टिक एक्ट के तहत दिए गए हैं एक फीमेल को, क्योंकि जब फीमेल आई आपके पास तब वो एक्स पार्टी में आई, और जब कंटेस्टिंग पार्टी आई और आपको लगा कि नहीं कहीं कुछ है, यानी इस कंप्लेंट में सच्चाई नहीं है, क्या आप खुद को वहाँ पे मतलब रोकती हैं? क्योंकि अक्सर बोला जाता है, अक्सर शिकायत की जाती है कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट अगर फीमेल को थोड़ा सा भी कहीं कुछ हो तो इस एक्ट का गलत इस्तेमाल होता है और एक मर्द जो है वो पिसता है, या उसके इन लॉज जो है लड़की के वो पिसते हैं। देखिए जो भी इमला होता है, मैं आपको बोलूं कि उसका सही इस्तेमाल भी होता है, उसका गलत इस्तेमाल भी कहते हैं। हम ये रूल आउट नहीं करेंगे कि ये जो एक्ट है ये मिसयूज़ नहीं हो सकता या नहीं होता है। जहाँ पर यूजेस होते हैं, मिसयूजेस
ऑब्वियसली साथ ही होते हैं। इसीलिए जो जब इस्तिखासा एक मैजिस्ट्रेट के पास आता है तो जो मैजिस्ट्रेट है वो इसको प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास इसीलिए भेजता है कि जो प्रोटेक्शन ऑफिसर की जो ड्यूटी है वो असिस्ट करना है मैजिस्ट्रेट को, क्योंकि उसको जाके ये इसकी तफ्तीश करनी है, एक DIR उसको बनाना है, डोमेस्टिक इंसिडेंट्स रिपोर्ट जिसको हम कहते हैं, वो एक तैयार करना है और उसको मौके पे जाके तहकीकात करना है, गवाहान मौके पे देखने, वो तो मैजिस्ट्रेट्स बाद में अपने गवाहान लेंगे, मगर जो इनिशियल रिपोर्ट है वो प्रोटेक्शन ऑफिसर की भी जिम्मेदारी है उस वक्त कि सच्चाई सामने लाना, सही रिपोर्ट पेश करे। ऐसा नहीं है कि अगर रेस्पोंडेंट या नॉन एप्लीकेंट जिसको हम बोलते हैं, मुल्जिम लेमैन की लैंग्वेज में बोलूंगी, उसका जानकार है तो वो उसके फेवर में वो रिपोर्ट बनाएगा, या लेडी कहीं विद ईच अदर है तो बिल्कुल, या लेडी का वो कुछ रिलेशन में है या उसको समहाउ जानता है या कांटेक्ट में, तो उसकी उस वक्त उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो पूरा ईमानदारी के साथ जो है वो रिपोर्ट तैयार करे, तो फिर कोई गुंजाइश नहीं रहेगी कोई इस एक्ट को जो है मिसयूज करे। जी क्या इसमें हम देखते हैं कि 498A जो है क्रुएलिटी का हमारा सेक्शन है जो IPC का, क्या 498 में भी हम कंप्लेंट कर सकते हैं और साइमल्टेनियसली हम डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो भी कर सकते हैं? जी बहुत अच्छा सवाल है ये। देखिए जो ये प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 है, ये सेपरेट एक्ट नहीं है। अगर हम करें कि ये एक एडिशनल जो बेनिफिट है ख्वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, ये एक पर्क, सॉर्ट ऑफ एक पर्क दिया गया है, एडिशन में आया। इसका मतलब ये नहीं है कि जो ख्वातीन के राइट्स है कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे आईन में दिए गए हैं या बाकी एक्ट्स में, इंडियन पेनल कोड में जैसे आपने बोला सेक्शन 498A IPC में दिया गया है, तो उसमें वो नहीं कर सकते। वो एक ही वक्त में जो ख्वातीन है वो डोमेस्टिक वायलेंस का अंडर दिस डोमेस्टिक वायलेंस भी कंप्लेंट कर सकती है और सेपरेट वो FIR कटवा सकती हैं इसमें 498A में। तो ये एक एडिशनल बेनिफिट जो है, ताकि जो सच में जो अमल है, जो ख्वातीन का तहफ़्फ़ुज़ है, क्योंकि हमारी सोसाइटी की मैं अगर बात करूं तो जो ख्वातीन है अभी भी उस ज़ुमरे से बाहर नहीं आई है कि जहां पर हम बोले कि वो एम्पावर हो चुकी हैं। एम्पावर डजंट मीन कि हमें कोई इक्वालिटी चाहिए मैन के साथ या कुछ, मगर जो अगर तशद्दुद का शिकार है, अभी भी बहुत सारी ख्वातीन हैं जो डर की वजह से, सोसाइटल प्रेशर्स की वजह से वो खुल के नहीं बोल पाती, उन पे तशद्दुद हो रहा है, व्हाट दे आर गोइंग थ्रू। क्योंकि तभी इसका जो फील्ड है ना डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का, इतना वास्ट किया गया है कि मतलब जज्बाती अगर तशद्दुद हो रहा है, जिस्मानी के साथ साथ जज्बाती है या जहनी, जिसको जहनी हम बोलते हैं, या इक्तिसादी जो तशद्दुद है, वो इस एक्ट के वो सारा कुछ इसमें जो है वो आ जाता है। मैम जैसे कि अभी आपने कहा कि हमारी काफ़ी सारी फीमेल्स हैं जो आज भी अगर उनके साथ कितना भी घरेलू तशद्दुद हो रहा है वो आगे नहीं आती हैं। क्या हमारी लीगल सर्विस अथॉरिटी का कोई कंट्रीब्यूशन है कि जैसे कुछ मोहल्लों में जाकर या कॉलोनीज़ में जाकर या कुछ ऐसे लोग जहां उनको लगे कि जैसे आप लोग कहीं कुछ अडॉप्ट करते हैं, कोई एरिया अडॉप्ट करते हैं जहां आपको लगे कि नहीं यहाँ लीगली लोगों को अवेयर करना बहुत ज़रूरी है उनके राइट्स, खासतौर हमारी फीमेल्स क्योंकि एक वीकर सेक्शन है, क्या उसमें लीगल सर्विस अथॉरिटी का अपना कुछ रोल रहता है कि आपका वो अपना एक होमवर्क रहता है कि हाँ हमें ये जगह जो है यहाँ अगर हमें कोई कंप्लेंट हमारे कानून तक आती है या हमने सुना है तो उसमें आपका लीगल एज सेक्रेटरी डालसा उसमें आपका क्या रोल रहता है उन लोगों तक एक मुफ्त कानूनी इमदाद पहुंचाने का और उन तक अवेयरनेस पहुंचाने का कि उनके क्या क्या राइट्स हैं? देखिए जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ है, पहले तो टोल फ्री नंबर 15100 है ही, जहाँ पर फ़ोन करके भी जो ख्वातीन है अगर किसी घरेलू तशद्दुद, पर्टिकुलरली मैं इस चीज़ की बात कर रही हूँ कि शिकार है और वो अपना कहीं पर अपने ग्रीवियंसेस को रेड्रेस करवाना चाहती है तो वो ऑब्वियसली उनके लिए अवेलेबल है। उसके अलावा हम फार फ्लंग एरियाज़ में जिनको उतनी जानकारी नहीं होती है उन ख्वातीन को, वीकर सेक्शन जैसे आपने बोला ख्वातीन है ही,
तो उन तक ये मैसेज हम जाकर पहुंचाते हैं. हमारे जो पैरालीगल वॉलंटियर्स हैं वो डोर टू डोर कैंपेन्स हमारी होती रहती है. वो सही मानों में ना वो सच में लोगों के दरवाजों पे जाके वो बोलते हैं कि आपके क्या हकूक है, क्या स्कीम्स है, या ख्वातीन से रिलेटेड अगर कहीं पर ख्वातीन के साथ तशद्दुद हो रहा है या किसी और किस्म की ज़्यादती हो रही है तो वो सिंपल उनसे वहाँ पर मौके पर वो दरख्वास्त ले लेते हैं, हमारे दफ्तर ले आते हैं. हमारे दफ्तर से नोटिस जाती है विक्टिम जो नॉन एप्लीकेंट होता है जिसने वो तशद्दुद किया होता है या कर रहा होता है उसको जाकर. उसके अलावा जैसे मुफ्त कानूनी इमदाद की बात कर रहे हैं तो सेक्शन 12 जो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 का है उसमें तो वुमेन एलिजिबल है इरेस्पेक्टिव ऑफ हर इकोनॉमिक स्टेटस. किसी भी चाहे वो डॉक्टर है, इंजीनियर है या हाउस मेकर है, सब एलिजिबल है फ्री लीगल सर्विसेज के लिए जिनको हम प्रोवाइड करते हैं. वकील जो उनसे कोई फीस कोई भी चार्जेस नहीं लेते वो नहीं लेते हैं और उनका चाहे डोमेस्टिक वायलेंस में उनका केस है या चाहे मेंटेनेंस के रिलेटेड केस है या कोई और क्रूएल जैसे हमने बोला 498 आईपीसी के अंडर जो भी केसेस है या कोई और राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हमारे आइन के तहत उनको दिए गए हैं उनको अमल में लाने के लिए उनको कोई केस करना है, किसी भी दफ्तर का रुजू करना है तो बिल्कुल वो उनके लिए अवेलेबल रहते हैं. जी मैम, अभी आपने कहा कि यहाँ इस एक्ट के तहत एक प्रोटेक्शन ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर, मैजिस्ट्रेट साहब हमारे काम करते हैं. तो क्या है इन तीनों पे ड्यूटीज जो आयद की गई हैं इस एक्ट के जरिए? जब एक जो विक्टिम है ये इस्तिखासा लेकर चाहे वो प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास जाए, चाहे पुलिस ऑफिसर के पास जाए, चाहे डायरेक्टली मैजिस्ट्रेट के पास आता है तो इन अफसरान की ये ड्यूटी है कि वो जो उस वक्त विक्टिम उनके पास आए उसको आगाह करे कि उसके लीगल राइट्स जो कानूनी हकूक उसको दिए गए हैं डिफरेंट कानूनी के तहत, पर्टिकुलरली जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के इसके तहत है, क्या उसके हकूक है और उसको ये इंफॉर्मेशन भी उनको देनी है कि वो एलिजिबल है फ्री लीगल सर्विसेज के लिए. अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकती है वकील या कोई भी ओपिनियन किसी एक्सपर्ट का तो वो लीगल सर्विसेज के जरिए जो रुजू कर सकते और उसके जरिए उसको मुफ्त कानूनी इमदाद जो है वो प्रोवाइड. ये इनकी ड्यूटी है उसको इन्फॉर्म करना उसकी क्या हकूक है. मैम, क्या ड्यूटी है इसमें गवर्नमेंट की इस एक्ट के तहत कैसे काम करना है? जी बिल्कुल, गवर्नमेंट की भी अपनी जगह पे सेक्शन 11 जो द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 है उसमें सेक्शन 11 में गवर्नमेंट पे भी कुछ ड्यूटीज आयद की गई है. पहला तो यही है कि जो ये एक्ट है इसको पब्लिसाइज किया जाए, चाहे वो टेलीविज़न के ज़रिए हो, चाहे प्रिंट मीडिया के ज़रिए, चाहे रेडियो के ज़रिए. ये जानकारी जो अवेयरनेस है ये इनको पीरियोडिकली गवर्नमेंट को लोगों तक पहुँचानी है, फार फ्लंग एरियाज़ तक पहुँचानी है. इकोनॉमी जो वीकर सेक्शन है, जो फार फ्लंग एरियाज में खवातीन हैं उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचानी और उसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स या जो होते रहते हैं डिपार्टमेंट्स की तरफ से, वेरियस डिपार्टमेंट्स की तरफ से, हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से होते रहते हैं रेगुलरली. उसके अलावा गवर्नमेंट की ये भी ड्यूटी है कि जो पुलिस ऑफिसर्स है या जुडिशल ऑफिसर्स है उनको पीरियोडिकली जो ये डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर ट्रेनिंग दी जाए. और जो डिपार्टमेंट्स है, वेरियस डिपार्टमेंट जो इन पे स्टेक होल्डर जिनको मैं बोलूँगी जो है उनकी कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी जो है वो सारी गवर्नमेंट की है. तो ये ड्यूटीज डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ने ही गवर्नमेंट पे आयद की है. जी मैम, इसमें एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि अगर ऐसी रिलेशन हो जाती है हस्बैंड वाइफ के बीच के काफ़ी ज़्यादा तलक रिलेशन हो जाती है, क्या इस एक्ट के तहत अगर कहीं फीमेल केस करती है और अपने इन लॉज को भी इन्वॉल्व करती है या कहीं इसमें कोई काउंसलिंग का कोई स्कोप है और क्या इसमें कोई ऐसी चीज़ है कि हमारे जो मैजिस्ट्रेट साहिबान हैं उनकी इंटरवेंशन से चीज़ें कहीं वापस ठीक होने का कोई चांस रहता है? जी बहुत अच्छा सवाल है. जो सेक्शन 14 है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का उसमें जो मैजिस्ट्रेट है वो डायरेक्शन दे सकता है विक्टिम को और जो एक्यूज्ड होगा नॉन एप्लीकेंट जिसके खिलाफ उसने केस किया हो उसको या तो दोनों को डायरेक्शन दे सकता है या किसी एक को डायरेक्शन, चाहे विक्टिम को दे डायरेक्शन जैसे मैजिस्ट्रेट को केस के हालात लगे आफ्टर लिसनिंग द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ ईच एंड एवरी केस, या एक्यूज्ड को डायरेक्शन दे सकता है कि वो काउंसलिंग जो सेशन है वहाँ जाए. काउंसलर जो वो ट्रेंड काउंसलर्स होते हैं, वो एक्सपर्ट्स होते हैं उस फील्ड में, मीडिएटर्स हमारे बिल्कुल
उनसे वो काउंसलिंग के लिए उनको भेज सकते हैं। उसके अलावा जो वेलफेयर एक्सपर्ट्स हैं उन से भी असिस्टेंस जो मैजिस्ट्रेट है वो ले सकते हैं और उनको डायरेक्शन दे सकते हैं कि वेलफेयर एक्सपर्ट्स जो होते हैं उनसे असिस्टेंस ले। इतना ये नहीं है कि जैसे भी आपने कहा कि ऐसा नहीं है कि अब तलखी इस हद तक पहुंची है कि वापस नहीं मुड़ सकते नहीं हो हैं। सकता, ऐसा नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं आपको बोलूं कि आप है तो ये आपस का ही उनका मामला। जब अगर उन्होंने ही सॉर्ट आउट करना है, हो गया सॉर्ट आउट, तो फिर कोई ये नहीं है कि आप नहीं उसको बढ़ाओगे। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता कि एक चांस इंसान लेता है बच्चों के लिए या बाकी चीजों के लिए कि हाँ एक चांस दिया जाता है इस बंदे को कि अगर इसने आज तक गलतियां की तो बिल्कुल, क्योंकि ये काउंसलिंग का तो है ही, इसमें रखा ही गया है इसीलिए कि पर्पस यही है कि अगर हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस कहीं कोई चांस अगर हो गया, अगर देयर इज अ होप ऑफ इम्प्रूवमेंट, तो ऑब्वियसली उसको एनकरेज ही करना चाहिए। जी मैम, हम आते हैं हमारा एक और टॉपिक, एक और मौजूद जो है वो है हमारा प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर फीमेल के इनहेरिटेंस। तो हम आते हैं थोड़ा इस पे कि पहले आप हमें ये बताएं कि क्या है ये इनहेरिटेंस और कैसे एक फीमेल को राइट मिलता है। देखिए, मैं अगर इंडिया की बात करूं, जैसे आपको पता है हमारी जो कंट्री है बहुत डाइवर्स कल्चर्स है, इसमें तमाम मज़ाहिब के लोग रिहाइश पजीर करते हैं इंडिया में। तो इसीलिए जो मेन 3 मेजर एक्ट्स जो है जो गवर्न करते हैं जो इनहेरिटेंस राइट्स है, एक है हमारा हिंदू सक्सेशन एक्ट है, दूसरा है इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925, और जो ये डिफरेंट जो फॉर एग्जांपल हिंदू सक्सेशन एक्ट है, हिंदूज उस जुमरे में बिल्कुल जेन्स है, सिख्स है, बुद्धिस्ट्स है, ये उस जुमरे में आते हैं। एप्लीकेबल उनको होगा जो उनके इनहेरिटेंस राइट्स है वो इसी एक्ट के तहत गवर्न होंगे। ऐसे ही जैसे इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 की बात करूँ मैं, क्रिश्चियंस है या ज्यूज है उन या पारसीज है, उनके जो इनहेरिटेंस राइट है वो गवर्न होंगे इसी एक्ट से। उसके बाद जो मुस्लिम जिसको हम शरीयत एक्ट 1935 भी कहते हैं, उनकी प्रॉपर्टी राइट जो इनहेरिटेंस राइट है वो उसी से गवर्न होंगे। तो जनरल अगर मैं करूं ख्वातीन की बात, जनरल जो सब एक्ट से हमें मिलता है, तो ये है कि ख्वातीन जो है वो इनहेरिट कर सकती हैं प्रॉपर्टी, और जो वो प्रॉपर्टी इनहेरिट करेंगी उसकी वो ओनर उस प्रॉपर्टी की वो ओनर बनती है, और उस प्रॉपर्टी का क्या करना है वो पूरा हक जो है वो ख्वातीन का ही, वो उसी लेडी का, उसी ओनर का होगा। ये सब एक्ट्स में ये जो राइट है ये ख्वातीन का है। मैम, हम अगर बात करें, हम अक्सर देखते हैं एक फीमेल के साथ हक तलफी होती है, फीमेल की शादी हो जाती है, उसको अपने घर भेज दिया जाता है, तो अगर प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन होता है बहनों को कुछ नहीं दिया जाता है या बेटियों को कुछ नहीं दिया जाता है, अक्सर बेटों के बारे में ख्याल रखा जाता है। तो ये एक माइंडसेट है, हम आसपास में अपने देखते हैं एक माइंडसेट है, और फिर 40 के बाद, 50 के बाद, 60 के बाद जब म्यूटेशन हो जाती है तो वो फीमेल्स या उनके बच्चे कोर्ट्स में हमें नजर आते हैं। अक्सर हम देखते हैं ऐसा कि वो म्यूटेशंस चैलेंज कर रहे होते हैं, अब जी ऐसा हो गया वैसा हो गया। क्या ये एक ऐसी चीज है कि इन फीमेल्स को उनके राइट्स के बारे में बोला नहीं गया है स्टार्टिंग से ही, तब जाकर ऐसी नौबत आती है? और आज की डेट में जैसे हमारा लीगल सर्विस अथॉरिटी हर चीज़, हर मौजू कवर करते हैं और हर चीज़ पे अवेयरनेस पहुंचाते हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ को लेकर ऐसी एक अवेयरनेस कैंपेन हमारा लीगल सर्विस अथॉरिटी या बाकी जो भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं वो फीमेल्स तक पहुंचाते हैं ये इन्फॉर्मेशन? देखिए गजाला जी, पहले तो मैं बहुत खुश हूँ कि ये टॉपिक आज इंक्लूड किया गया, क्योंकि इस टॉपिक के बारे में ख्वातीन को मुझे लगता है कि अगर हम ज्यादा नहीं जानकारी है, एक तो जानकारी नहीं है और ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया है कि उनको कोई हक नहीं है इस बारे में बोलने के लिए, जो कि सही नहीं है। अगर जो ख्वातीन है, अगर एक्ट्स की ही मैं बात करूं, इनको बिल्कुल हक है, और ऐसा नहीं है जैसे आपने बोला कि बेटी की शादी कर दी या बहन की शादी कर दी, तो ऐसा माइंडसेट हमारी सोसाइटी में क्रिएट किया गया है कि हमने जी आपकी शादी कर दी तो दैट इज इट, आपका हिस्सा जो है, आपका हिस्सा जो प्रॉपर्टी में है तो आप उस हिस्से से आपकी शादी की गई, एग्जैक्टली, जो विच इज नॉट ट्रू।
क्योंकि कोई भी रिलीजन आप ले लीजिए, उसमें ये ड्यूटी है बाप की, एक भाई की, कि वो अपनी बहन, अपनी बेटी की शादी करे। ऐसा नहीं है कि आप उसकी शादी कर रहे हो तो जो उसका हिस्सा है प्रॉपर्टी में वो तो उसको अपने रिलीजन ने दिया है। चाहे आप हिंदू मैरिज, हिंदू सक्सेशन एक्ट की बात करो, आप शरीयत एक्ट की बात करो, उसको हक दिया गया है। शरीयत ने ही हक दिया है। अगर देखिए, अगर मैं हिंदूज की बात करूं तो जो अमेंडमेंट एक्ट आया 2005 में आया, तो उसमें जो फीमेल है, जो डॉटर है, वो इनहेरिट कर सकती है, वो कोपार्सनर जिसको हम बोलते हैं, वो इनहेरिट कर सकती है मेल से। और जो उसने इनहेरिट किया वो उसको ओनर बन गई, वो उसको डिस्पोज ऑफ करके जो भी प्रोसीड्स आए उसकी अपनी मर्जी, उसको क्या अपने फायदे के लिए वो यूज कर सकती है। ऐसे ही अगर मैं मुस्लिम वुमेन की बात करूं, बेटी की बात करूं, बेटे को 2 शेयर्स है, बेटी को 1 शेयर रखा गया है। ऐसे ही विडो है, फॉर एग्जांपल विडो अगर चाइल्डलेस है तो 1/4 शरीयत के अंडर उसको सूरतुल निसा में दिया गया है, तो 1/4 वो इनहेरिट करती है। अगर चिल्ड्रन है या ग्रैंड चिल्ड्रन है तो 1/8 है। एक से ज्यादा बीवी, अगर 2 बीवी है किसी की, तो उसमें शेयर इंक्रीज हो जाते हैं, 1/16 वो इनहेरिट करती है। वो बाज़ाब्ता वो दिया गया, आप इसको हक तलफी नहीं कर सकते हो किसी भी सूरत में। वो ये फीमेल्स को भी मैं अवेयर करना चाहती हूँ और रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि इट इज नॉट लाइक कि अगर आप हिस्सा मांग रहे हो, ये इट इज नॉट समथिंग कि आप कोई बर्डन या कोई गलत चीज कर रहे हो, तो आप गुनाह कोई कर रहे हो। ये आपको हक दिया गया है, आपको कानूनी भी हक है और आपको शरीयतन भी हक है। जिस भी मजहब से आप ये रिलेट कर रहे हैं, आपको हक दिया गया है। तो आप कुछ ये गिल्ट, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि लेडीज जो गिल्टी होती है कि नहीं मैं कैसे लूं अपना ये हिस्सा, मैं अपने भाई से कैसे मांगू, मैं अपने बाप से कैसे मांगू। ऐसा तो है नहीं, आप बाप का तो प्रॉपर्टी आप ऑटोमेटिकली इनहेरिट करोगे, तो जैसे बेटा इनहेरिट करेगा वैसे बेटी भी इनहेरिट करेगी। क्वांटिटी में फर्क रखा गया है क्योंकि फीमेल एक और अपने हस्बैंड के घर से भी इनहेरिट करती है। बिल्कुल, क्योंकि फीमेल्स को हस्बैंड से भी प्रॉपर्टी लेनी है, उसको अब ऑब्वियसली अगर भाई है उसको अपनी फैमिली है, उसको भी ये करना है, यानी बैलेंस करके ये सारी चीजें। बिल्कुल यही है। मैं बस यही कहूँ कि गिल्ट फ्री आप ना करो कि आपने अगर इनहेरिट की है बाप की प्रॉपर्टी, जैसे आपका भाई उसका बच्चा है, आप भी उसके बेटी हो, आप बिल्कुल हकदार हो उस प्रॉपर्टी की। जी मैम, एक मैसेज जो हमारे प्रोग्राम के हवाले से आप खवातीन को देना चाहे, आज के जो हमारे 2 मौज़ूआत थे उनको लेकर। जी बिल्कुल, मेरा मैसेज यही रहेगा, अगर कोई जो औरत है घरेलू तशद्दुद की शिकार है तो प्लीज़ आप आवाज़ उठाइए, आप सामने आइए। चाहे कोई भी तशद्दुद हो या आपकी इनहेरिटेंस राइट्स जो है वो वायलेट हो रहे हैं, आप आगे आइए, क्योंकि जब आवाज़ उठेगी तभी मैसेज आएगी। अगर आपको जानकारी है, आप लोगों तक वो जानकारी पहुंचाइए। बस यही मैसेज रहेगा मेरे। मैम, आपका हमारे प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आज आपने देखा कि 2 एक्ट्स के बारे में हमने बात की डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के बारे में, जो हम आए दिन अपने प्रोग्राम में ये टॉपिक जो है वो लाते हैं और इस पे गेस्ट लाते हैं बात करने के लिए। और आज हमने इनहेरिटेंस के बारे में बात की, प्रॉपर्टी को लेकर एक फीमेल का हक। तो हम उम्मीद करते हैं जो भी आज हमारे स्टूडियो में डिस्कशन हुआ एक फीमेल के राइट्स को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर, कि कभी भी गिल्ट ना फील करे अपना हक जो है, अपना हक मांगने में और अपना हक ढूंढने में, क्योंकि ये जो हक है ये आपको आपके शरीयत ने दिया है। और ये हक जो है, इस हक से आप जिस तरह आप अपने फादर का नाम अपने नाम के साथ जोड़ते हैं, वैसे ही ये जो चीज़ है ये आपकी है, यानी आप अपने साथ हक तलफी ना होने दें। और उम्मीद करते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाइए आप इसका भरपूर फायदा उठाएंगे। नाजरीन, ऐसे ही कुछ और मौज़ूआत के साथ आपकी खिदमत में और हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।
देख रहे हैं डीडी कशिर एहसास कश्मीर का।